Dear students, welcome to Social Science Tutorials. We are back with another video to help BA program second year students of SOLDU in education subject. This is our second video to support students of second year in their assignment. Link for the previous video is provided in the description box. If you are new to our channel or haven't subscribed it yet, then please subscribe. If you find this video useful, then like, share and comment. Let's start with the question. We are going to discuss question number 1, which is explain the cognitive theory of Piaget and Vygotsky based on the observation of children in your surroundings. Cognitive development. We will start with the definition of cognitive development and a little introduction about Piaget and Vygotsky. Then we will discuss Piaget's theory and then Vygotsky's theory with examples. Cognitive development means how children think, explore and figure out things. It is the development of knowledge, skills, problem solving and dispositions which help children to think about and understand the world around them. बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मेंटल फैकल्टीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, जो नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक एक्सेट्रा से रिलेट करते हैं, सो दैट चिल्ड्रन कैन थिंक एंड दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड. Both Piaget and Vygotsky were prominent scholars of cognitive development theories. They have contributed to the field of education by offering explanation for children's cognitive learning styles and abilities at different point of time. While Piaget and Vygotsky may differ on how they view cognitive development in children, both offers educators good suggestion on how to teach certain material in a developmentally appropriate manner. Even with two very different backgrounds, both scholars took a constructivist approach to their research in cognitive development, as they believed children must construct their own understanding of the world in which they live. दोनों को ही कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट माना जाता है. उस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट में भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाने वाले हैं ये दोनों, और दोनों ये मानते हैं, जब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो दैट मीन्स चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. कोई उनको ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं करता है नॉलेज, बल्कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है उस पर बच्चे काम करते हैं और उसके बाद अपनी एक समझ बनाते हैं. To understand about Piaget's theory, we need to discuss his three basic components. The first is schema, second is adaptation processes, which include equilibrium, assimilation and accommodation. Third is stages of development. तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझ पाते हैं तो पियाजे ने कॉग्निटिव थियोरी के बारे में जो बातें कही हैं वो हमें समझ आएंगी. वो कुछ स्कीमा की बात करते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस की बात करते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली स्टेजेस में होता है, जिसे पियाजे ने बताया कि किस किस एज ग्रुप में ये स्टेजेस पाई जाती हैं. नाउ कमिंग टू स्कीमा. स्कीमाज आर बेसिकली द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग. आप स्कीमाज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डर्स को हम नाम दे देते हैं कि ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर एजुकेशन का फोल्डर है, ये हिंदी का फोल्डर है. तो इस तरह से स्कीमा इज़ ऑल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर थिंकिंग के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए होते हैं, जहाँ जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो वहाँ जाके स्टोर होती है. तो एक स्कीमा कई तरह की इंफॉर्मेशन को मिला के इकट्ठा होता है. दे आर द सिस्टम्स ऑफ एक्शन एंड थॉट दैट अलाउ अस टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड. जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी होके वो हमें मेंटली एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की तरफ ले जाते हैं. स्कीमा इज समथिंग एग्जिबिटेड इन अ पर्सन्स आउटवर्ड बिहेवियर और समथिंग एग्जिबिटेड इंटरनली और इज समवॉट सिमिलर टू थिंकिंग. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे स्कीमा बढ़ते जाते हैं. जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, जितना हम कांटेक्ट दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं,
वस्तुओं के कांटेक्ट में आते हैं तो एनवायरनमेंट से हम नई चीज़ें सीखते रहते हैं और नए स्कीमा बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे के पास डॉग का स्कीमा है कि वो जानता है कि डॉग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देन वो डॉग और डंकी दोनों डिफरेंट तरह के स्कीमाज हैं। तो पहले हो सकता है कि वो डॉग को एसिमिलेट करे कि डॉग जैसा ही लगता है डंकी, क्योंकि उसके 4 पैर हैं, उसके कान है, जिस तरह से वो चलता है, कुछ चीज़ों के साथ सिमिलैरिटीज़ के साथ वो स्कीमा बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट करना सीखेगा कि किस तरह से कुत्ते की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसी उसकी आवाज़ है, जो चीज़ें वो खाता है, और एक डोंकी जिस तरह की चीज़ें खाता है, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों के अलग अलग 2 स्कीमाज बन जाएंगे। और ये जो स्कीमाज हैं, इनका जो रिलेशनशिप है, that is called cognitive structure. An individual's interaction and understanding of the world is dependent on her cognitive structures. तो जितने complex cognitive structures होते जाएंगे, उतना ही हम logically ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ये cognitive structures हर एज ग्रुप में अलग अलग होते हैं और ये धीरे धीरे क्वालिटेटिवली बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि बच्चे के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी हमारे पास जो फोल्डर्स होते हैं, पहले हम उसमें कोई भी जो चीज़ हम देखते हैं बाहर, उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि वो एसिमिलेट हो जाए, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर वो उसमें एसिमिलेट नहीं होती तो डिसइक्विलिब्रियम आता है, और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि एक नया हम स्कीमा बनाएं। तो वो जो एडजस्टमेंट होती है स्कीमा में, वो उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। For example, when a child looks at a ball for the first time, she tries to understand the object. As a result, it is a schema for the round object called ball is formed in her mind. And after repeated experiences with ball, when the child starts recognizing it, any round object will be perceived as a ball. So ball and other objects of different sizes and colors will be perceived as ball. This is called assimilation. एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है कि एसिमिलेट होती हैं चीज़ें, इक्विलिब्रेशन आ जाता है, संतुलन आ जाता है, लेकिन उस संतुलन में जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिसइक्विलिब्रियम आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अभी पीछे हमने जो बात की थी कि बच्चे के पास डॉग का स्कीमा है, तो वो जैसे ही डोंकी को देखता है, कोशिश करता है कि वो एसिमिलेट हो जाए। लेकिन ये जो नई सिचुएशन है, इसमें डोंकी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो डॉग से नहीं मिलती, तो बच्चे के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो डिसइक्विलिब्रियम आने के बाद वो डॉग का जो स्कीमा है वो और डोंकी का जो स्कीमा है वो दो स्कीमा अलग अलग स्कीमा बनाएगा। एक स्कीमा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और दूसरा स्कीमा अब उसके पास और आ जाएगा। तो अब उसके पास जो भी नई सिचुएशन से चीज़ें आई, उसने अपने नए स्कीमा बना लिए और एसिमिलेट कर दिए। लेकिन अब फिर दोबारा से वो अगर किसी और 4 पैर वाले जानवर को देखेगा तो वो या तो उसे डॉग के साथ या डोंकी के साथ कोशिश करेगा एसिमिलेट करने की, और अगर वो उसे एसिमिलेट नहीं अगर एसिमिलेट कर लेता है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो डिसइक्विलिब्रियम आएगा और अकोमोडेशन फिर से होगा और फिर से नए और स्कीमास बनेंगे। तो ये आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये वाला जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को ऐसे आप अपने जो भी बनाएंगे अभी अपना असाइनमेंट पेज, उस असाइनमेंट पेज पे इसे आप ऐसे शो कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, विच इज़ फ्रॉम 0 to 2। इस एज ग्रुप में बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेमोरी स्टार्ट होती है बच्चों की, इमिटेट करते हैं बच्चे, और थोड़ा बहुत बच्चे सोचते भी हैं। वो पेरेंट्स के, बड़ों के जो एक्शंस हैं उनको इमिटेट करते हैं, और जनरली जो है बहुत इनिशियल स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली अगर हम उन्हें देख नहीं रहे हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड दैट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर मान लीजिए माँ को देख रहा है, जब तक वो उसे दिखाई दे रही है तो वो उसके लिए
एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब माँ उसके सामने नहीं होती तो वो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। उसी तरह उसके खिलौने एग्जिस्ट नहीं करते, तो थोड़ी सी देर में वो भूल जाता है बच्चा। बट टूवर्ड्स एंड ऑफ दिस स्टेज दे बेसिकली डेवलप दिस टर्म विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर उन्हें चीज़ें याद रहने लग जाती हैं। इस एज ग्रुप को सेंसरी मोटर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें बच्चे की जो सेंसेस हैं वो डेवलप होती हैं, और वो जो मोटर सेंसेस के साथ साथ हाथ चलाना, पैर चलाना, अंगूठा चूसना, इस तरह के बहुत सारे एक्शंस बच्चा लगातार करता रहता है, और इससे वो अपनी जो सेंसेस हैं और अपनी जो मोटर कैपेसिटीज़ हैं उनको डेवलप कर रहा होता है। इसका एग्जाम्पल है, बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप ऑब्जेक्टिव परमानेंस एंड वी फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स वेयर दे स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग देयर टॉयज एंड अदर थिंग्स. They remember their toys, ask for these toys after they wake up, and they also search for their toys if they don't find it at usual place. Stage 2 pre-operational stage है, 2 to 7 years होती है. इसको भी फर्दर दो जो अलग अलग सब स्टेजेस हैं उनमें बांटा जाता है. जनरली ये जो टाइम पीरियड है इसमें बच्चे थोड़ा लैंग्वेज सीखते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना भी सीख जाते हैं. They also learn the significance of symbols, some of which may be specific to their culture. For example, they understand that the picture of an object actually represents the real object. Similarly, they start to understand the meaning of gestures such as handshake or waving of hand means goodbye or so on. Although conservation इसमें जो है नंबर्स का, लेंथ का, सब्सटेंस का अभी बहुत ज़्यादा बच्चों में डेवलप नहीं होता है, और इसीलिए वो वन डायमेंशन चीज़ों को सोचते हैं. और दो ग्लास जिनमें एक जैसा इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर अगर दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें एक लंबा है और एक छोटा है, तो बच्चे जो हैं ये नहीं समझ पाएंगे कि दोनों में इक्वल पानी है, चाहे आपने एक ही ग्लास से दोनों के अंदर डाला हो. They refuse to believe that both the short and the tall glass have the same water. They say that the taller glass has more water than the shorter one. At this stage, they are also not able to see things from others' perspective. इसको कहा जाता है ईगोसेंट्रिसिज्म, दैट वो सारी चीज़ों को अपने ही पर्सपेक्टिव से सोचते हो और समझते हैं. इन आवर डेली एवरीडे, सॉरी ये आवर डे नहीं होना चाहिए, इन आवर एवरीडे लाइफ लिखना चाहिए. और वी इनकाउंटर सच सिचुएशन when children from this stage fight with their siblings to have big cup of ice cream even though the amount of ice cream is that is same. तो जैसे ऊपर हमने एग्जांपल बताया कि वो क्योंकि एक ही सिचुएशन से सोचते हैं और कंजर्वेशन उनके अंदर नहीं आया होता है. दे ऑल्सो कैन बी फाउंड टॉकिंग टू देयर टॉयज एज दे आर लिविंग बींग्स. वो इसके अंदर एक एनिमिज्म भी पाया जाता है इस एज ग्रुप के अंदर, जब बच्चे जो निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती उनको भी वो सोचते हैं कि वो लिविंग बींग्स हैं. इसीलिए आपने इस एज ग्रुप में देखा होगा, ये इसीलिए हम एग्जांपल लिख रहे हैं कि वो अपने टॉयज़ को लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ बात करते हुए कई बार आपको दिखेंगे. दे ऑल्सो प्ले मेक बिलीव प्लेज. ये प्ले ऐसे होते हैं जिसमें किसी एक चीज़ को कुछ और मान लिया जाता है और उनको इमेजिन करके सीखते हैं. तो इस एज ग्रुप में बच्चों में इमेजिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है, वेयर दे कैन यूज़ टीवी रिमोट एंड स्टार्ट प्रिटेंडिंग दे आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन. इस तरह का आप अपने आसपास बच्चों को खूब देखते होंगे. तो ये बेसिकली हम एग्जांपल दे रहे हैं. थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल है, जो बेसिकली बात करती है कि कंक्रीट चीज़ों से अगर बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएँ तो बच्चे कैटेगराइज कर सकते हैं. बच्चों में कंजर्वेशन भी ज़्यादा आ जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, वो थोड़ा लॉजिक भी डेवलप कर लेते हैं. तो इस एज ग्रुप को हम कह सकते हैं कि दे स्टार्ट शोइंग शेयरिंग एम्पैथी यानी दूसरों के लिए सोचना, एंड फेयरनेस इन देयर बिहेवियर. दे शेयर देयर टॉयज़, टॉफ़ीज़, अदर इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा विद देयर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स. In school, children show interest and learn more if concrete supporting material is used in classroom. For example, if you are teaching 3D shapes in mathematics, तो 3D shapes का यूज़ करना, उसका मटेरियल को यूज़ करना जो है, फिर वो बच्चों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा समझा पाएगा और उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. स्टेज 4 इज़ फॉर्मल ऑपरेशंस. इसके अंदर बेसिकली हम सब में लॉजिकल इस स्टेज तक आते आते जो कि 11th से एडल्टहुड तक है.
लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो लोगों में डेवलप हो जाती है. They are also able to think about beings other than themselves, which is sometimes manifested as their concern for social cause. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ओपिनियन बिल्डिंग की जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव तरीके से सोचना, ये सारी चीज़ें इस एज ग्रुप में आ जाती हैं. लेकिन पियाजे ये भी कहते हैं कि सारे लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंचते नहीं हैं. कुछ लोग पिछली स्टेज से इस स्टेज के इन बिटवीन ही रहते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल लॉजिक जो है वो डेवलप नहीं होता है. In our life situations, we find examples when children of this age begin to develop abstract thought pattern where reasoning is executed using pure symbols. जैसे इसी एज ग्रुप में फिर हम जो है अलजेब्रा एक्सेट्रा शो करते हैं. तो अलजेब्रा जो बच्चे फटाफट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है उसको शो करते हैं. फॉर एग्जांपल x माइनस 2x x प्लस 2x इज इक्वल टू 9, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है उसको समझना और उसको सॉल्व करना विदाउट रेफरिंग टू अ कंक्रीट सिचुएशन प्रेजेंटेड बाय द टीचर, ये शो करता है दैट चाइल्ड हैज़ रीच्ड द फॉर्मल operational stage of Piaget. Now we will start with the socio-cultural theory of Vygotsky. Vygotsky और Piaget में दोनों में यही डिफरेंस है. Piaget कहते हैं कि इंडिविजुअल खुद से कंस्ट्रक्ट करता है. Vygotsky कहते हैं कि जो लर्निंग है वो को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस होता है, जो कि इंटरेक्शंस एंड वर्बल नेगोशिएशंस के साथ अपने से बड़े लोगों और अपने से ज़्यादा जो जिन लोगों को चीज़ें ज़्यादा पता है, मोर इक्विप्ड पीपल हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन करते हैं तब हम चीज़ें सीखते हैं. सो द फंक्शन ऑफ सोशल life is more important, social context is more important for Vygotsky than the Piaget. मेन कंपोनेंट्स ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी, अगर वाइगोत्स्की के थ्योरी को देखें तो उसमें रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इंटर सब्जेक्टिविटी, कल्चरल टूल्स, स्कैफोल्डिंग एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ लैंग्वेज, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें समझने होंगे, तभी हम वाइगोत्स्की की जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसे समझ सकते हैं. तो वाइगोत्स्की कहते हैं that there is a important role of social interaction in the development of intellectual or cognitive capacities of an individual. It's not that Piaget didn't recognize, both of them have recognized that social interactions are important, but Piaget does not explore this particular aspect. Only Vygotsky says that interaction with adults or members older than oneself is most helpful for cognitive development, as due to their deeper knowledge and wider experiences, they are able to guide the younger people better. Vygotsky believes that through interaction, adults of a particular culture pass on the cultural values, belief system, customs and other valued skills and tradition to the next generation. और इसीलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे इंडियन कल्चर में बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है. सो पेरेंट्स बहुत जल्दी से, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तभी से उन्हें बड़ों की जो रिस्पेक्ट है वो करना और उसके लिए किस किस तरह के जेस्चर्स शो करने चाहिए, इनको सिखाना शुरू कर देते हैं. इंटर सब्जेक्टिविटी बेसिकली होता है कि जब दो लोग किसी एक काम को कर रहे होते हैं तो पहले उनकी दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब इंटरेक्शन होती है वो उस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं. तो ये जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज़ कॉल्ड इंटर सब्जेक्टिविटी. कल्चरल टूल्स, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की हर एक सोसाइटी के कुछ कल्चरल टूल्स होते हैं. ये कल्चरल टूल्स रियल टूल्स हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, मोबाइल है, और कुछ सिंबॉलिक टूल्स हो सकते हैं, लैंग्वेज है, नंबर है, मैथमेटिक्स सिस्टम है, साइन है, मैप है, एक्सेट्रा. तो ये दोनों ही चीज़ें जो कि रियल टूल्स या सिंबॉलिक टूल्स हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को
कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हैं, जो सोसाइटी जिस तरह के कॉग्निटिव टूल्स पर, कल्चरल टूल्स पर फोकस करेगी, वैसे ही कॉग्निटिव लोगों के डेवलपमेंट होंगे। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो साइंसेस पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो टेक्निकल जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जापानीज़ जो सोसाइटी है वो कल्चरल टूल्स में खासकर जो टेक्निकल टूल्स हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान देती है। तो वहाँ के लोगों में ज़्यादातर हमें ये दिखता है कि उनका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रखते हैं और उनके पास वो नॉलेज ज़्यादा है, और इसीलिए वो लगातार जो है नए नए टेक्निकल सेंस में जो इनोवेशंस हैं वो करते रहते हैं। स्कैफोल्डिंग एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अब ये दो टर्म्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो बेसिकली बात करता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर बिना किसी की मदद के लेवल 2 पे, फॉर एग्जांपल जैसे लेवल 2 पे बच्चा कोई काम कर सकता है बिना उस किसी की सहायता के, लेकिन उसके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो क्षमता 5 लेवल तक काम करने की है, तो लेकिन बिना किसी की हेल्प के वो सिर्फ लेवल 2 तक ही जा सकता है। तो लेवल 2 टू लेवल 5 के बीच का जो स्पेस है, जो किसी की सहायता से, किसी की इंस्ट्रक्शन से, किसी के क्लूज से, कोई क्लू दिया जाए, हिंट दिया जाए, उससे थोड़ी बहुत मदद की जाए, उससे वो बच्चे की जो पोटेंशियल है 2 लेवल से वो पोटेंशियल है उसके अंदर कि वो 5 तक पहुंच सकता है उसकी अचीवमेंट। तो इसके बीच का जो भी स्पेस है, ये जो भी स्पेस बचा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब हुआ जहाँ तक मैक्सिमम किसी का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है। और स्कैफोल्डिंग फिर क्या हुई? स्कैफोल्डिंग बेसिकली वो हेल्प हुई, वो हिंट देना हुआ, वो उस तरह की गाइडेंस हुई, वो सपोर्ट हुआ जो कि किसी द्वारा दिया गया ताकि जो एक्चुअल पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक पहुंचा जा सके। तो इसमें पूरा टेक्स्ट यही चीज़ आपको बता रहा है कि बच्चा जो परफॉर्म कर रहा है उससे कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो डेवलप कर पाए, और उसके लिए ज़रूरी होती है कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वाइगॉत्स्की ने कहा है कि जो अडल्ट लोग हैं या जो हमसे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल पर्सन है, वो हमारी जो भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक पहुंचने में हमारी स्कैफोल्डिंग कर सकते हैं। वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो कम किया जा सकता है। हम 2 की बजाय हम 4, हम 5 तक अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल 5 तक जाने का है। We know that cultural tools mediate the higher order process such as reasoning and problem solving. That's why example हमें दिखता है, these days children know many functions of mobile and computer as they are born in the age of these cultural tools. 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा नहीं था। तो उस समय के जो बच्चे थे उनके पास जिस तरह के कल्चरल टूल्स थे वो उस तरह से चीज़ें सोचते थे और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उस तरह से बनाते थे। इन स्कूल्स टीचर्स मेक मल्टी एबिलिटी ग्रुप्स where children of different abilities are placed together for a specific task. ये क्यों करते हैं टीचर्स? Because in such groups children can learn cooperation as well as solve the problem with each other's help. Thus few get scaffolding from other students and they learn. इस तरह का हमें कई बार देखने को मिलता है क्लासरूम्स के अंदर। तो ये भी एक अदर एग्जाम्पल है। रोल ऑफ लैंग्वेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही है और इसमें पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों थोड़ा सा डिफर करते हैं। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि छोटे बच्चे कई बार जो है कुछ काम कर रहे होते हैं तो दे आर इन अ हैबिट ऑफ मटरिंग टू देमसेल्फ, अपने आप से कुछ बात करते रहते हैं, जिसे उन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच। बच्चे अपने आप को बार बार ये बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ। कई बार आपने इस चीज़ को देखा हुआ है। ये बेसिकली प्राइवेट स्पीच है जो अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की हमें काम को करने के लिए इंटरनली मोटिवेट करती है, और धीरे धीरे ये जो प्राइवेट स्पीच है ये हमारी इंटरनल स्पीच बन जाती है। और हम ऐसा नहीं है, अभी भी हम कई बार जब हम बहुत बड़े हो गए हैं तब भी हम कई बार इंटरनली बोलते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। हालांकि पियाजे इसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं। पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे स्टार्टिंग में इसका यूज़ करते हैं स्पीच का, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो और ज़्यादा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बनाते जाते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको इस स्पीच की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। Vygotsky takes it as positive
as it develops as a result of child's interaction with adult of her community. It is very significant tool used by children in problem solving. कई बार बच्चों को आपने देखा होगा बोलते हुए, हाँ हाँ तुम कर सकते हो, अच्छा इसको ऐसे करता हूँ या मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया जो भी वाइगॉत्स्की के जो पॉइंट्स थे रिलेटेड टू cognitive development. Now coming to conclusion. Thus we can say that both Piaget and Vygotsky gave rich insights to understand the cognitive development. We can find many implications of their theories in our surrounding. Their theories of cognitive development have been influential in development of theories of education. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.